कल से आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में 2 रोज तक कोरोना के आजमाइशी टीके दिए जाएंगे। 28 और 29 दिसंबर को कृष्णा जिले के लोगों को आजमाइशी टीके दिए जाएंगे। जिले के 5 मकामात की निशानदेही की गई है, जिनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजयवाड़ा, उकनूर पीएचसी, पूर्णा खानगी अस्पताल, अर्बन यूपीएचसी और एक सरकारी स्कूल का इंतखाब किया गया है। हर सेंटर में 25 अफराद को आजमाइशी टीका दिया जाएगा। आजमाइशी टीकों की तकमील के बाद रियासती हुकूमत ने पहले मरहले के तहत 1 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके देने का फैसला किया है, जिनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, सरकारी और खानगी दवाखानों के मुलाजमीन शामिल हैं। 25 नवंबर से 21 दिसंबर तक बैरून रियासत और ममालिक से आने वाले अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। खासतौर पर बरतानिया से आने वालों पर खुसूसी नजर रखी गई है। कृष्णा जिले के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान 116 अफराद बैरून ममालिक से कृष्णा जिला पहुंच गए हैं। जिले के तमाम कमिश्नर्स, आरडीओज को बैरून ममालिक से आने वालों की निशानदेही करते हुए उन्हें आइसोलेशन में रखने का हुक्म दिया गया है। సిచ్యుయేషన్ తర్వాత మనకు ఎవరైతే యూకే నుంచి వస్తున్నారో అటువంటి వారిని మరి పూర్తిగా వారిని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టండి, వారిని ఇమ్మీడియట్గా టెస్ట్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనకు ఉదయాన్నే మనకు కొన్ని లిస్టులు కూడా ఎవరైతే నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 21 వరకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, వివిధ ఎయిర్పోర్ట్స్ నుంచి, వివిధ మనకు ప్రదేశాల నుంచి అంటే యూకే నుంచి వచ్చిన వారి సమాచారాన్ని అన్ని జిల్లాలకు అందజేయడం జరిగింది. మన జిల్లాకు కూడా ఇచ్చిన లిస్టులో 116 మంది మన జిల్లాకు వచ్చినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. వారందరికి కూడా వాళ్ళ అడ్రస్లు కూడా తీసేసుకొని అందరివి మనకు ఆయా ఆర్డీఓలకి, ఆయా సబ్ కలెక్టర్స్కి, కమిషనర్స్కి, మున్సిపల్ కమిషనర్స్కి పంపించడం జరిగింది. వారిని అందరినీ హోమ్ ఐసోలేషన్లోనూ, క్వారంటైన్ సెంటర్లోనూ పెట్టి सीपीआई ने नए ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मरकज़ से मांग की है। सीपीआई की 95वीं यौम तासीस के मौके पर रामकृष्णा ने विजयवाड़ा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोदी हुकूमत मुल्क के सबसे बड़े ज़रई शोबे को कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है। आज मुल्क का किसान इस नए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। मरकज़ी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने नए ज़रई क़वानीन को किसान मुखालिफ करार दिया। All these years the CPI struggled for the common man, struggled for the workers, for the employees and also the downtrodden people, particularly the rural India. Now the Modi government is doing injustice in the name of farmers' laws to the farming community, so that the farmers of all over India, they are struggling against this government. We the CPI, we are all supporting this agitation, and also we are demanding the central government headed by the Prime Minister Mr. Narendra Modi to withdraw all the laws which are against the farming community. Then only the peace will be remain. Otherwise the lakhs of people are coming to Delhi, they are struggling. Nearly 33 farmers died due to this agitation. Even then they are going forward. So we demand the central government headed by the Prime Minister Mr. Narendra Modi to withdraw all the laws which are against the farming community, which were passed by the parliament undemocratically, without proper discussion, without division. They didn't vote. मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ विजयवाड़ा में DYFI के कारकुनों ने एहतजाज किया। किसानों की तायद में विजयवाड़ा के धरना चौक पर DYFI के कारकुनों ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया। एहतजाजी DYFI के कारकुनों का कहना है कि इस्लाहात के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। Now we are opposing the recently central government introduced the 3 new formation acts. We are opposing that. Why Modi government introduced these 3 acts in a pandemic time? What's going on in India, Mr. Modi ji? Why are you not responding the farmer protest? We are opposing the 3 acts. We are demanding repeal the 3 formal acts. So in entire India, farmers opposing the 3 acts. Why are you not responding? करनूल के धरना चौक पर ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। भूख हड़ताल 30 जनवरी तक जारी रहेगी। भूख हड़ताल में शरीक किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया किसान तंजीम के रुकन गौस देसाई ने कहा कि जिला करनूल से जनवरी में चलो दहली प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा।
जो भी दिल्ली में पिछले महीने से एहतजाज कर रही हैं उन्हां के तायद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंडल हेडक्वार्टर्स में आज भूख हड़ताल बैठे हैं किसानों की तरफ से। मगर बेशर्मी की बात यह है कि कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों से मैं बात करता हूं बोल के नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे वज़ीर आज़म उन्होंने इतनी झूठी इल्ज़ाम लगाए हैं आज किसानों के ऊपर। वहाँ जो भी बैठे हैं किसानों उन्होंने किसान नहीं बोल के आज बदनाम करते हैं। इतना शर्मी बात है, इतना बेइंसाफ़ी बात है। ये आज किसानों ने पूरा गुस्सा ला लेकर ठहरे हैं। पूरे रियासतों में जो भी किसान है वो किसान उनके साथ ही और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। जनवरी फर्स्ट वीक में से आंध्र प्रदेश में से हजारों लोगों किसानों ने कर्नूल रुकन असम्बली हफीज़ खान को आंध्र प्रदेश ने बड़ी जिम्मेदारी है। हफीज़ खान को मशरक़ी ममालिक का खुसूसी नुमाइंदा मंतखब किया गया है। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कर्नूल के YCP लीडरों और कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद दी और गुलपोशी करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए हफीज़ खान ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे, कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अर्दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब मेरे ऊपर भरोसा करके एडिशनल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट कंट्रीज के वास्ते फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड टूरिज़म और सब किस्म से जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में और ये कंट्रीज़ के बीच में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ये पोस्ट दिए हैं, उसका मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में ये सब कंट्रीज़ से जो है हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में किस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते या हमारे बच्चों को उनके कंट्रीज़ में किस तरीके से जॉब्स दिला सकते या हमारे और उनके कंट्रीज़ में और हमारे स्टेट के बीच में क्या किस्म से जो है रिलेशनशिप हम लोग बढ़ा सकते हैं बोलकर उसके ऊपर काम करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का सबका साथ रहा तो ज़रूर आंध्र प्रदेश स्टेट की भलाई के वास्ते काम करके बताएंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट के साथ स्पेशली हमारी ये ख्वाहिश तो रहेंगी कि कर्नूल में कोई ना कोई हम इंडस्ट्री लेके आ सकें या स्किल डेवलपमेंट का कोई जॉब क्रिएशन कर सकें, चाहे वो इंडिया में रहने दो, आंध्र प्रदेश में रहने दो या जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहने दो। और जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट्स जो है ये मेरा फोकस रहेगा। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँ। गरीब माइनॉरिटी तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप की बरकरारी का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में MIM की क़यादत में 2 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। साबिक़ हुकूमत ने गरीब माइनॉरिटी तलबा के लिए बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप का आगाज़ किया था। जगन हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बैरून ममालिक में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। स्कॉलरशिप न होने की वजह से इनकी तालीम मुतासिर हो रही है। MIM ने ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी करते हुए 350 तलबा के मुस्तकबिल को रोशन करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। ओवरसीज स्कॉलरशिप का स्कीम है, इसको रियासत आंध्र प्रदेश की तरफ से हुकूमत की तरफ से रोका गया है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चों को। उधर जो बच्चे तकलीफ में हैं और बच्चों की तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 दिन का धरना रखा गया है। हम लोग ये चाहते हैं मजलिस पार्टी की तरफ से कि रियासत आंध्र प्रदेश के CM जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब से वो मेहरबानी कर उनसे अदबन गुजारिश भी करता हूँ तो आप जो बच्चे वहाँ रुक गए हैं पढ़ाई में बगैर पैसे के स्कॉलरशिप के, उनकी आवाज़ सुने, उनके माँ बाप की परेशानी सुने, वो स्कीम को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाए। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप वो बच्चों की तकलीफ को जल्द से जल्द दूर करें। दूसरे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसी तरह मुसलमान बच्चों को, क्रिश्चियन बच्चों को सारे। अलखैर फाउंडेशन अदूनी की जानिब से गरीब और सड़क के किनारे शब बसरी करने वाले अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। फाउंडेशन के अरकान ने बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और दीगर अवामी मकामात पर सड़कों के किनारे शब बसरी करने वालों में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। अलखैर फाउंडेशन के रुकन याकूब पटेल उमरी ने इस कार खैर में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। फाउंडेशन की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब गुरबा में रोड पर सोने वाले मज़दूरों के लिए ब्लैंकेट वगैरह तकसीम करने का ये मुहिम हमारी जारी है। पहला फ़ेज़ जो हम लोग अब शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे और 2 फ़ेज़ होंगे।
हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा हमारा ताउन करते आए हैं, इस बार भी आप लोग दिल खोल कर ताउन करेंगे, क्योंकि अधोनी के इलाके में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिससे रोड पर सोने वालों को काफ़ी मशक्क़त और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर फाउंडेशन जो पिछले साल भी तकरीबन 500 लोगों में ब्लैंकेट तकसीम किया था, इंशाअल्लाह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये पहला फेज़ जो हमारे साथ ऑटो में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट वगैरह पूरे मौजूद है हमारे पास। लोगों से हम उम्मीद करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग अल खैर फाउंडेशन का ताउन करें, ताकि गरीब गुरबा तक हम लोग मुस्तहिक लोगों तक ब्लैंकेट वगैरह पहुंचा सकें। आप लोग अपना ताउन पेश करने के लिए अल खैर फाउंडेशन का अकाउंट भी है, और इसी तरह आप लोग फ़ोन पे और गूगल पे भी कर सकते हैं। फ़ोन पे और गूगल पे करने के लिए हमारे नंबरात 8341214676 9703471884 ये 2 नंबरात पर आप लोग फ़ोन पे और जी पे कर सकते हैं। शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल की खबर ने पूरी उर्दू दुनिया को सोगवार कर दिया। उनकी शख्सियत और उनका इल्म उर्दू दुनिया के लिए मीनार नूर से कम नहीं। इन ख्यालात का इजहार एडिटर बज़्म-ए-आना करनूल डॉक्टर सैयद वहीद पाशा कौसर ने किया। उन्होंने कहा कि आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके साथ गुजरे वक्त की यादें और उनका इल्मी व अदबी सरमाया हमारे पास महफूज है। बज़्म-ए-आना करनूल के तमाम अरकान शम्सुर रहमान फारूकी के चले जाने पर मग़मूम हैं। शम्सुर रहमान फारूकी को उनकी ज़िंदगी में जो शोहरत और मकबूलियत मिली वो बहुत कम उर्दू अदीबों को नसीब हुई है। प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी का शुमार उर्दू के अकाबिर नाक़दीन में होता है। उनके साने इर्तिहाल से उर्दू दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। वो उर्दू ज़बान और अदब के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर भी उबूर रखते थे। अंग्रेज़ी ज़बान का उन्होंने बड़ी गहराई से मुतालिया किया था और चाहते थे कि मग़रिबी ख़यालात और तहरीकें उर्दू ज़बान में भी पार पाएँ। इसके लिए उन्होंने शब खून में इन मग़रिबी ख़यालात और रुझानात को बार पाने का मौका दिया, जिसकी वजह जदीदियत के अलमबरदारों में उनका शुमार होने लगा। जदीदियत और जदीदियत के रुझानात उर्दू शायरी में 1960 से 1980 के दहाइयों में खूब बार पाए और इसका आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में ट्रक और टू व्हीलर के दरमियान हादसा पेश आया। अनंतपुर के गत्ती मंडल में ट्रक ने टू व्हीलर को टक्कर मारी, जिसके बाद टू व्हीलर से अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में 2 अफराद झुलस गए। ट्रक भी आग की नजर हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचने तक ट्रक पूरी तरह से जल गया था। पुलिस ने आग में झुलसे 2 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश में महकमे पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर तालमेल बरकरार है। पुलिस जवान अवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखे हुए हैं। कोरोना जैसी खौफनाक बीमारी के दौरान महकमे पुलिस ने नाकाबिल फरामोश खदमात अंजाम दी। डीजीपी गौतम सॉन्ग ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया अरसे में पुलिस जवानों की खिदमात की सताइश की। People of Andhra Pradesh, the citizens, they also came forward in times of crisis, and they have also cooperated and ensured they participated in the process of fighting this pandemic. So we also appreciate the kind of maturity and the response which the people of Andhra Pradesh also. We have definitely, there is more to be done and we are working towards that. I assure the people of Andhra Pradesh, all sections of the society, particularly those sections who needs the police services most, that we are working to reach that satisfaction level. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। जीन्स पैंट या सलवार, हांगकांग या हरिद्वार,